Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Gaura Hari Jaya Gaura Hari Jaya Gaura Hari Jaya Gaura Hari Gaura Hari Jaya Gaura Hari Nittai Gauranga Jaya Nittai Gauranga Nittai Gauranga Jaya Nittai Gauranga Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Bol Hare Bol Hare Bol Jai Gaura Hare Bol Hare Bol Hare Bol Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacarya Ashtottara Shatashi Srimad Divine Grace Abhay Charanaravindha Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Haridas Thakur Ki Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Brajabhumi Vrindavana Dham Ki Madhura Dham Ki Dwarakapuri Dham Ki Purushottama Kshetra Jagannath Puri Dham Ki Shri Mayapur Navadvip Dham Ki Gangamai Yamunamai Ki Bhakti Devi Tulasi Devi Ki Samaveta Bhakta Vrinda Ki. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshughavanmelitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Svava Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurattushe Namaha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha
नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रातःकालीन भागवत के सत्र में आप सबको सुस्वागतम। आज और आने वाले 2 दिन हम लोग गजेंद्र मोक्ष के लीला से कुछ श्रवण करेंगे। और ये जो आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह गजेंद्र नाम का एक हाथी का पांव पकड़ा गया एक मगरमच्छ से एक झील में। एक दिन जब विहार करने के लिए वो गया था और उसके कारण दुख से पीड़ित ये हाथी आसमान की ओर देखते हुए भगवान को पुकारा। कैसे भगवान को पुकारा, उसको सद्बुद्धि कैसे आई इत्यादि के बारे में हम आगे श्रवण करेंगे। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, श्रीपाद शंकराचार्य ने बताया है कि इस दृश्य जो है इसको प्रातः काल में अगर कोई स्मरण करता हो और इस गजेंद्र मोक्ष के स्तोत्र को उच्चारण करता हो तो उसको इसी जन्म में सद्गति प्राप्त होगा, वैकुंठ प्राप्ति होगा। ये भागवत के अंदर भी इस तरह का आशीर्वाद है। इसलिए गोरखपुर प्रेस वाले एक छोटे किताब छापे हैं गजेंद्र मोक्ष नाम से। एक छोटा पोथी है, बहुत प्रसिद्ध है। अनेक लोग पूरा गजेंद्र मोक्ष के स्तोत्र को याद कर लेते हैं अनेक लोग। तो अभी आने वाले 3 दिन हम लोग ये स्तोत्र बोल कर ही हम प्रवचन को चालू करेंगे। थोड़ा शुरुआत में थोड़ा जटिल होगा आपको उच्चारण करने में, चिंता नहीं करना, धीरे धीरे आपको आ जाएगा बोलते बोलते हैं। थोड़ा तेजी से भी जाएगा, ऐसे देख देख कर बोलते जाइए, 3रा दिन आपको पूरा आ जाएगा। ठीक है, साथ में बोलेंगे। श्रीशुक उवाच एवं जबसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच ओं नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं जैदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये शम्भुवम् यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वचिदतिरोहितं अविद्यदृक्साक्षुभयं तदीक्षते सात्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवार्षयः पदं विदुः जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोका प्रथमव्रणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः मे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमाययादान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छायायोक्ताय सदभासाय ते नमः नमो नमस्ते किल कारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वावगाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणार्णिच्छिन्नचिदुष्मपाय तक्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम
स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मातृक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुबृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तैः दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यः धर्मकामार्थविमुक्तिकामाः भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किंत्वाशिशोरात्यशि अपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अद्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाढ्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा some tune will change here. Yasya brahmadyo deva veda lokascharacharaha nama rupa vibhedena falagvya cha kalaya kritaha yathartishogne saviturgabhastayo niryanti samyantya sakritvarochishah तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्मनःख्रानि शरीरसर्गाः स वै न देवसुर मर्त्यङ्तिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाख्यम् अन्तर्बहिश्चावृतये भूयोऽन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमहसह्यवेग शक्तित्रयाय किल धीगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेत्स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तम् इतोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपससृपुर् किलात्मकत्वात् तत्राकिलामरमयो हरिराविरासीत्. Hariravirāsit means Lord Hari arrived at that time when after Gajendra offered all these prayers. Tam tatpadarthamuvalabhya jagalnivasah stotram nishamya divijay sahasamstuvadbihi chandomayena garudena samuhyamanah चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तस्य रस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खवुपार्थचक्रम् उक्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहात् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुचदुस्त्रियाणां योऽसौ ग्राहस वै सद्यः परमाश्चर्यरूपदृग् मुक्तो देवलशापेन कुहुगन्धर्वसत्तमः सोऽनुकम्पित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमगान् मुक्तकिल्बिषः गजेन्द्रो भगवतः स्पर्शात् विमुक्तो अज्ञानबन्धनात् प्राप्तो भगवतो रूपं पीतवासश्चतुर्भुजः एवं विमोक्ष गजयूतपद्मब्जनाभः
स्तेनापि पार्षदगति गतिं युक्तः गन्धर्वसिद्धविभूतैरुपगीयमान कर्माद्भुतं स्वभवनं गरुडासनो अगात्. I think this one is coming the way. How to move this? I don't know. Yeah, that's yeah. Green one. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षिणी तृतीयोऽध्यायः. So that was the prayer by Gajendra. We will do chapter number 2 today. दूसरा अध्याय करेंगे आज. ठीक है. तीसरा अध्याय में सब प्रार्थनाएं आते हैं अभी जो हमने सुना. लेकिन और प्रार्थना के पहले क्या हुआ वो हम पढ़ने जा रहे हैं. ये जो देख रहे हैं आप दूसरा अध्याय, इसमें हम लोग आज 1 से 26 तक सुनेंगे हम. 1 to 26. कल श्रवण करेंगे 7 से 30, जब एक मगरमच्छी आक्रमण करता है गजेंद्र को. और उसके आगे तीसरा दिन वो आक्रमण के बाद गजेंद्र का स्थिति क्या था, उनका सोचना क्या था और कैसे उन्होंने भगवान की शरण ली इत्यादि के बारे में तीसरे सत्र में सुनेंगे. तो भागवत में इस तरह का सुंदर वर्णन है. तो इस तरह त्रिकुट पर्वत के बारे में वर्णन है, जिधर गजेंद्र नाम का ये हाथी रहता था. तो आने वाले 8 श्लोकों में आप सुनेंगे ये स्वर्गों में किस तरह के ऐश्वर्य है, किस तरह की सुख सुविधा है, किस तरह लोगों का शरीर है और उनका रहन सहन है. तो बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है. तो अभी से इधर से चालू हो रहा है कि त्रिकुट नाम के हाँ ठीक है, बीच बीच में आपको हिंदी में दिखाऊंगा मैं. तो ऐसे बहुत बड़े ऊंचे 10,000 योजना का पर्वत था. उसमें लोहा, चांदी, सोना इत्यादि से बनाया हुआ पर्वत थे वो. और उसमें रत्नों से मंडित था वो. बहुत अच्छे अच्छे सुंदर पेड़ थे, पौधे थे. उसका वर्णन आता है. इधर देखिए, पर्वत के पाद की भूमि सदैव दूध के लहरों से प्रक्षालित होती रहती है, जो 8 दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा इनके बीच की दिशाओं में मरकत मणियों को उत्पन्न करती है. इधर बताया गया कि उधर दूध के लहरें का मतलब है वो झील जो था वो दूध का ही था वो. हम लोगों का अनुभव है कारा पानी इस दुनिया में. तो कोई सोचेगा कि दूध का कैसे. एक व्यक्ति पूछ रहा था कि आपने बोला दुग्ध सागर में लेटे हैं विष्णु, ये तो इसमें विस्मित हो उठाओ. तो मैंने पूछा क्या है, इतना विस्मित होने की बात क्या है. वो बोल रहा दूध इतना महंगा है. अरे तुम्हारे लिए महंगा है, भगवान के लिए कैसे महंगा है. देखिए नारियल के अंदर पानी जो है मीठापन है कि नहीं उसमें, वो खारा पानी को लेकर मीठा पानी बनाता है. इसी तरह भगवान समुद्र के खारा पानी को लेकर मीठा पानी बनाकर बारिश के रूप में प्रदान कर रहे हैं भगवान, है कि नहीं. इस तरह नारियल का मीठा पानी भी हम लोगों ने पिया है. इस तरह अलग अलग प्रदेशों में दूध का सागर है, नहीं तो गन्ने का रस का सागर है. ऐसे भागवत में पढ़ने को मिलता है हमें. तो कोई आश्चर्य करेगा कि ऐसे हो भी सकता है क्या, नहीं तो एक कपोल कल्पित बात कुछ बोल रहे हैं. ऐसे भी कुछ लोग सोचने की संभावना है.
देखिए, अगर कोई भारत में कोई झोपड़ी पट्टी में रहा हो कोई व्यक्ति, उसको अमेरिका के ऐश्वर्य के बारे में बोलो वो विश्वास नहीं करेगा वो। जब तक आप अमेरिका झाँक कर नहीं देखोगे तब तक पता नहीं चलेगा। इतने विशाल सड़क हैं, इतने बड़े इमारतें हैं, 200 माले वाले, 300 माले वाले हैं, ऐसे बड़े इमारतें हैं, गगनचुंबी बोलते हैं ना, स्काई स्क्रैपर हैं, ऐसे बहुत बड़े इमारतें हैं, बहुत विशाल सड़क है, तो तेज़ी से चलने वाली ट्रेन है। कल हम एक गाड़ी में आए प्रयागराज से कानपुर हैं, वो ट्रेन जो होता है, इसी तरह अमेरिका में सब ट्रेन ऐसे ही है, वो दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद होता है, ऑटोमेटिक खुलता है। अभी भारत में धीरे धीरे लोगों का इस तरह का ट्रेन का अनुभव हो रहा है अभी धीरे धीरे। अभी नहीं तो लोग ऐसे ऐसे ट्रेन में बाहर ऐसे आते हैं ना, मुंबई भी देखते हैं, आगे जाकर बंद हो जाएगा इस तरह। अभी इस तरह का सिस्टम उधर पक्का है, इसी तरह भारत में भी सिस्टम चला रहे हैं अभी, करेक्ट है ना। तो बोलने का मतलब क्या है, उधर आप जाकर देखेंगे तब पता चलेगा कि उधर लोगों का भी शरीर भी बहुत खूबसूरत है, शरीर, और उनके पास बहुत पैसा भी बहुत है, और उनके पास ऐशाराम भी बहुत है, सुख सुविधा बहुत बहुत है। कारण क्या है, वो लोग पुण्य करके उनको ऐसा प्राप्त हुआ है। कुछ लोग पूछते हैं, अरे अमेरिकी लोग इतना पाप करते हैं फिर भी उनको इतना अच्छा शरीर भी खूबसूरत है, तंदुरुस्त है, और अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं और अच्छा रहते हैं, ऐशाराम है। तो उन ऐसे पाप आत्माओं को कैसे दिया गया है? अरे ये पूर्व जन्म में क्या पुण्य के लिए अभी उसको भोग रहे हैं अभी, उसका पुण्य पुण्य को पूर्व जन्म अर्जित पुण्यम अग्रे धावती धावती ऐसे बताया गया। लेकिन अभी जो पाप कर रहे हैं उसके लिए लात खाएंगे बाद में। जैसे अगर आपने पूर्व महीने में अच्छा नौकरी किया आपने, उसके लिए वेतन महीने के एंड में आता है ना, शुरुआत में देते हैं, एंड में देते हैं। अगर बोला अरे इसको 1 लाख दिया, मुझे 10,000 दिया, अगर अभी कुछ सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसका वेतन बाद में आएगा उसका, करेक्ट है ना। जैसे नलकुर मणिग्रीव को खूबसूरत शरीर मिल गया था, लेकिन दुष्प्रयोग किया, क्या बने वो? पेड़ बने। देखिए, इस तरह इधर भी हम पढ़ने जा रहे हैं कैसे वो स्वर्गलोकों में इस तरह की सुविधा है, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलता है उधर। हम लोग इस भूमि में रात को सोकर उठते हैं सुबह, तो पसीना छूटा हुआ शरीर से, गंदगी निकलता है शरीर से, तो मलमूत्र इत्यादि विसर्जन होता है, में नहाना पड़ता है ना। नहा कर शरीर को धोकर कुछ लोग शरीर में पुस करके ये भी लगा देते हैं, या सेंट भी लगाते हैं, थोड़ा और सुगंधी अनुभव, सुगंध की इसके लिए। लेकिन स्वर्गलोकों में बताया गया कि अगर कोई नर नारी ये लोग आकर नदी में नहा कर जाते हैं, नहाने के बाद नदी में सुगंध आ जाता है, ऐसे 80 मील दूर तक वो सुगंध का वास प्राप्त होता है, ऐसे बताया। उनका शरीर ऐसा है, उनको लिए अलग सेंट नहीं लगाना पड़ता उनको, शरीर में स्वाभाविक रूप से सेंट ऐसे शरीर है उनका। इसी तरह से दूध का सागर जो है वो जाकर उसके लहरें जब ये पहाड़ों को छूते हैं उस समय उधर मणियाँ उत्पन्न होते हैं, ऐसे बताया गया है। और वो जो झरने, उनके पानी से बहुत मधुर ध्वनि निकलता है, जैसे नदियाँ बहते समय ऐसे। और उधर सिद्धचारण गंधर्वैर, बोलिए, विद्याधर महोरगैः किन्नरैरप्सरसोभिश्च क्रीडद्भिर्जुष्टकन्धरः। तो उधर कौन कौन आते हैं उधर इस मनोरम वातावरण में? सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, महाउरग, ये सब लोग। ये महाउरग का मतलब बड़े सर्प। तो सर्प के बारे में जब हम सुनते हैं लगता है कि ये लोग हमेशा सर्प हैं, हमेशा सर्प नहीं है वो। पर बुजरादानंद महाराज बता रहे थे एक लेक्चर में, वो लोगों का भी खूबसूरत मनुष्य जैसे ही शरीर है, लेकिन वो उनके अंदर क्षमता है सर्प बनने के लिए, सर्प का रूप धारण करने के लिए। जैसे अघासुर के बारे में सुना होगा, अघासुर हमेशा सर्प नहीं है, वो एक असुर है वो, लेकिन
वृंदावन में उन्होंने सोचा कि सब गोप बालकों को निगलने के लिए क्या रूप अच्छा होगा। तब उसने सोचा कि सर्प का रूप अच्छा होगा और सब अंदर चले जाएंगे, बंद कर देंगे उसको ऐसे हैं। ऐसे उसने योजना बनाया ऐसे। इसी तरह उरग वो भी आते हैं, किन्नर आते हैं, अप्सर का मतलब अप्सर आए हैं आते हैं। क्रीडतबीर वो लोग क्रीड़ा करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं उधर। ऐसे मनोरम वातावरण है उधर, ऐसे बताते हैं। यत्र संगीत सन्नादैर नदद्गुहम मर्षया अभिगर्जन्ति हरयः श्लाघिन परशंखया। बताते हैं कि ये अप्सराएं नाचती हैं, गंधर्व गाते हैं, तो उनकी गाना इत्यादि सुनकर शेर सोचता है कि अरे दूसरा शेर आवाज कर रहा करके ये भी आवाज करता है, धाड़ कर रहा। अभी देखिए इधर इस तरह पहले क्या बोलते हैं, खनी बोलते हैं, खनी बोलते हैं क्या, घाटी, घाटी बोलते हैं। उस घाटी में अनेक प्राणियां रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, बगीचे हैं, पंछियों के कलरव सुनने के लिए भी मिलता है उधर ऐसे। उधर झील हैं, नदियां हैं अनेक, और उधर जो नदियों के तट में जो धूल है वो धूल भी मणियां हैं ऐसे बताते हैं। त्रिकुट पर्वत की घाटी में ऋतुमत नामक उद्यान था। तो एक उद्यान के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि यह उद्यान महान भक्त वरुण का था और यह देवांगनाओं का क्रीड़ा स्थल था। यहाँ सभी ऋतुओं में फूल फल उगते रहते थे। इनमें से अभी बताया जा रहा है कि क्या क्या फूल उधर उगता था। मंदार, पारिजात, पाटल, अशोक, चंपक, आम्र विशेष, चौथा और पियाल, पनस, आम, आम्रातक, क्रमुक, नारियल, खजूर तथा अनार मुख्य थे। वहाँ पर मधुक, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, अरिष्ट, उडुम्बर, प्लक्ष, बरगद, किमशुक तथा चंदन के वृक्ष थे। वहाँ पर पुचुमर्द, कोविदार, सरल, सरदारू, ऐसे अंगूर, गन्ना, केला, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है क्या बोलते हैं ना। कुछ कुछ पेड़ पौधों का नाम हमने सुना है और बाकी देखा भी नहीं है, सुना नहीं है। जैसे भागवत में वर्णन था करंदव, ऐसे जो हम बतख जानते हैं और बगुला जानते हैं, उनको छोड़कर और भी अनेक पंछियों का नाम आता है। क्योंकि आधुनिक शिक्षा जो है वो ज़्यादा शहरों में है, गाँव में नहीं, और प्रकृति के निकट आकर शिक्षा ज़्यादा नहीं है। लोग प्रकृति से दूर चले गए। किसान के बेटे भी इंजीनियर बनते जा रहे हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इसलिए उनको प्रकृति के साथ संपर्क ना होने के कारण प्रकृति के संबंध में जो उदाहरण दिया जाता है वो लोग उनको समझ नहीं आता है, नाम भी सुने नहीं है। जैसे वर्णन देते हैं भगवान के बिंब फ्रूट जैसा है भगवान का ओंठ, तो वो लोग पूछे बिंब कैसे दिखता है, मालूम नहीं उनको, ऐसे पूछेंगे ना। तो बताते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर वो तालाब में फूल हैं, उधर भ्रमर गूंजते हैं, वो मधु पीते हैं, और उधर वापस पता गया कि पंछियों कलरव कर रहे थे उधर। ऐसे लग रहा था कि मानो वो गा रहे हो। इस तरह बहुत सुंदर मनोरम वातावरण के बारे में वर्णन किया गया है ऐसे। उधर जो कछुआ रहते थे पानी में और मछली घूमते समय वो फूल से निकलने वाले सुगंध जो होता है, पोलन को क्या बोलते हैं, पोलन, हाँ मकरंद बोलते इसको, हाँ, वो पानी में ऐसे वो भी दिखाई देता था, बताते हैं ऐसे। ऐसे अनेक पेड़ों के बारे में सुना हमने, क्या क्या फल के पेड़ थे, क्या क्या फूल उगते थे उधर। इस तरह का बहुत सुंदर वातावरण था उधर। और उस स्थान में राजा कौन था, आप सोचेंगे कोई शेर होगा राजा। जंगल का राजा कौन है, शेर होता है।
लेकिन इधर का राजा दूसरा था, ये राजा था। कौन? गजेंद्र। इसलिए इंद्र बताया गया उसको। तो अभी शेर में और हाथी में कौन शक्तिशाली ऐसे पूछा जाए तो अगर सूंड से हाथी शेर को पकड़ लेता है, मार देता हो। आपने देखा होगा, कुछ वीडियोस में देखा होगा आपने। सूंड से जब पकड़ लेता है हाथी के शरीर को, तो हाथी जो पकड़ लेता है शेर को, पास खत्म कर देगा। क्योंकि हाथी के पास बहुत क्षमता है, ये सूंड से डालियों को भी फाड़ देता है पेड़ों से। कभी कभी पेड़ के तना जो है उसको ही उठा लेता है, जड़ से निकाल देता है हाथी। ऐसे भी आपने देखा होगा, बड़े बड़े स्कूटर को भी उठाकर फेंकता है वो, देखा ना आपने। जैसे बाइक, ऑटो को भी तोड़ देता है। कभी कभी कार के ऊपर अगर हाथी बैठेगा ऐसे, पूरा कार चटनी हो जाता है। ऐसा किया है ऐसे हाथियों ने कभी जंगल में। जो लोग कार चलाने वाले थे वो लोग कार को छोड़कर भाग गए वो लोग। तो हाथी बहुत बड़ा शक्तिशाली प्राणी है। इसलिए शेर को भी कभी मार सकता है। लेकिन कभी अगर शेर हाथी के गला को पकड़ लिया पीछे से आकर ऊपर मारकर, तो तब हाथी को जीत लेता है शेर ऐसे। लेकिन ये जंगल में ये गजेंद्र राजा था वो, सब प्राणी उसको सलाम मारते थे, सब डरते थे उससे। छोटे प्राणियाँ वन के दूसरी स्थान में रहते थे, निकट भी नहीं आते थे वो, इतना डरते थे। देखिए इधर अपने परिवार को लेकर एक दिन विचरण करने के लिए गया ऐसे। कभी विहार करने के लिए नदी में जाकर लोग जाते हैं ना, जैसे लोनावाला जाते हैं पुणे से, कुछ लोग नैनीताल जाते हैं, कुछ लोग छुट्टी आ गया तो कुछ लोग घूमने घामने के लिए चले जाते हैं, है ना ऐसे। तो इसका भी ऐसा ही विचार था कि चलो सब परिवार के सब सदस्यों को लेकर हम कुछ एक्सकर्शन, कुछ पिकनिक के लिए जाएंगे ऐसे। इस दुनिया में सब लोग, पहले तो इंसान कसरत करता है कमाने के लिए, और कमाने के बाद उसकी सोचना है कि अच्छी तरह कमाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और बिजनेस बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? आराम करेंगे और विहार करेंगे। ये सबका प्लानिंग ऐसा है। आप देखेंगे अंततः तो आप देखेंगे सब जीव क्या चाहता है? आराम और विहार चाहता है, करेक्ट है ना। तो इसलिए आप देखते हैं कि अंततः जीव या तो अब ब्रह्म ज्योति में जाकर शांति आराम करता है, या तो गोलक में जाकर विहार करता है भगवान के साथ। तो ये जीव के लिए स्वाभाविक स्थिति है इस तरह। लेकिन इस दुनिया में आराम नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि पदम पदम तत् विपदाम न तेषाम, ऐसे बताया गया है। इस दुनिया में हर पद पर कुछ न कुछ खतरा है ही इस दुनिया में। तो आप सोचेंगे अरे जंगल में जाओगे तो बाघ है, शेर है, बड़ा डर है, इसलिए हम कभी नहीं जाते। एक बार हम लोग ब्रह्मचारी लोग यात्रा किए थे, एक शिविर किया हमने। तो ब्रह्मचारी लोगों ने बोला अरे शहर में आकर हम थक गए, अभी चलो कहीं गांव में होना चाहिए हमारा शिविर। ठीक है, एक बहुत अंदर के गांव में एक रिट्रीट सेंटर था। वो लोगों ने दिया था, आप लोग यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम है। तो हम लोग उधर जाकर शिविर किया, दो तीन दिन का शिविर। पहले दिन सुबह जपमाला लेकर भक्त लोग चलने लगे अंदर जंगल में नाम जपने के लिए। ऐसे चलते चलते सुबह थोड़ा अंधेरा भी था आगे। तो रिट्रीट का मालिक आया, बोला कि आप लोगों को थोड़ा एक दो चीज़ बोलना है आपको। आप लोग इस रास्ते में ज़्यादा मत जाना, चीता आता है, चीता जानते हैं ना, चीता आता है, और अंधेरे में कभी मत जाना। सुबह 8 बजे के बाद जा सकते हैं और शाम को 7 बजे के पहले, उसके बाद नहीं। तो सुनते ही सब डर गए, अरे पहले बोला क्यों नहीं है? तो उसके बाद रात को हम लोग सोचे छत के ऊपर बैठकर हम लेक्चर करेंगे। लेकिन दुनिया के 84 लाख योनियों के सब योनि आ जाते हैं उधर। क्या आ जाते हैं? उड़ने वाले, तैरने वाले, सब तरह के लोग आ जाते हैं उधर। तो क्यों बता रहा था, जब से लोगों ने सुना चीता के बारे में सुना, और भी कल्पना करने लगे शेर भी आएगा, बाघ भी आएगा, सर्प भी आएगा, ये भी आएगा।
रात को लोग सोने हैं, अगले दिन बोला निकल चलो इधर से। तो इस दुनिया में हम लोग देखते हैं कुछ डर देने वाले चीज़ और कुछ चीज़ देखते भी नहीं। देखने के पहले से हम डरते हैं, इस दुनिया में डर होता है। और जो चीज़ों से आप बहुत आसक्त होते हो और जो चीज़ों से आप डरते हो, दोनों चीज़ आपके दिमाग के अंदर घुस जाते हैं, आप देखेंगे। इसलिए आपको सपने में आएंगे, चीता आ जाएगा, जिसके बारे में सुना आपने, सर्प आ जाएगा, शेर आ जाएगा, ऐसे इस दुनिया में। तो इस दुनिया में इसलिए शांति से कोई जी नहीं सकता इस दुनिया में, कुछ ना कुछ डर है। और कुछ लोगों के लिए असली रूप में डर आ ही जाता है जीवन में, कुछ लोगों के लिए डर है। अभी कोरोना के समय आप देखेंगे, आपको शेर बाघ आने की ज़रूरत नहीं, एक छोटा कोरोना देख भी नहीं सकते आप आंखों से उसको। इतना छोटा कीटाणु वो अंदर घुस जाता है, बैठता है नाक में 4 दिन और इधर गले में बैठता है 2 दिन और लंग्स के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर जोर लगाएगा, श्वास नहीं ले पाओगे। इंसान को पता चल गया है कि प्राणवायु की कितना मूल्य है, ये जो ऑक्सीजन की कितना मूल्य अभी पता चला इंसान को। क्योंकि अनेक लोग, कोई बोलता है कि मैं नास्तिक हूँ, भगवान का मानता नहीं, तो नाक पकड़ो उसका। बोले कि अभी भगवान से ऑक्सीजन मत लो, तुम योग्य नहीं हो लेने के लिए। हाँ, अभी कोरोना के समय पता चला कि कितना ऑक्सीजन सिलेंडर लाना पड़ा लोगों को जान बचाने के लिए ऐसे। इसलिए खतरा जो है, ऐसा नहीं कि खतरा बड़ा शेर नहीं तो बाघ के रूप में आना चाहिए। खतरा एक छोटे कोरोना के रूप में भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, घुस सकता है शरीर में। इसलिए दुनिया खतरा का दुनिया है ये। पदम पदम यति पदाम न तेषाम, ऐसे भागवत में बताया गया है। तो आप बोलेंगे स्वामी जी आप डरा क्यों रहे हैं हम लोगों को इस तरह? देखिए, ये डराने की बात नहीं है, सत्य बात है ये, झूठ नहीं बोल रहे हैं हम। ये जो भी बोल रहे हैं आप देख सकते हैं दुनिया में। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, 2 चीज़ करना चाहिए। समय की बर्बादी नहीं करना चाहिए इस दुनिया में। जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम करके निकलना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कॉलेज में विद्यार्थी जब आते हैं, कभी कभी देखा जाता है कि वो सिगरेट फूंकते हैं, शराब पीते हैं, नशा लेते हैं, स्त्री पुरुष घूमते घामते हैं, तो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। तो पिताजी बहुत नाराज हो जाते हैं। अरे तुमको इतना पैसा खर्चा करते हैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुमको फेल होने के लिए क्या पैसा भेजते हैं क्या तुमको? तो पिताजी की अपेक्षा होता है कि पूरा 4 साल पढ़कर इंजीनियर बनकर मेरे बिजनेस में आकर ज्वाइन करे, है कि नहीं? लेकिन कुछ कुछ देखा जाता है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो नालायक बन जाते हैं, ऐसे, है कि नहीं? इस तरह इस दुनिया में भी जब हम आए हैं, भगवान ने इस तरह की सुख सुविधा दिया है ताकि हम इस दुनिया के परीक्षा को पास करके हम भगवत धाम लौटकर भगवान के बिजनेस में हम शामिल हो जाए। उनका बिजनेस क्या है? विहार। असली विहार उधर है भगवान के साथ। उधर की विहार जो है वो दिव्य विहार है, भगवान के साथ दिव्य लीलाएं हैं। उसमें जुड़ना ही जीव के लिए परम लाभ है, वो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन जीव भगवान के साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहता, इधर अपने अलग आकर खुद का अकाउंट खोलकर खुद का प्रोग्राम बनाकर भटक रहा है इस दुनिया में जीव। भगवान बोलते हैं अरे जॉइंट अकाउंट खोल लो मेरे साथ। जैसे मैंने सुना एक परिवार में एक धर्म पत्नी थी, वो भी काम करती थी, पति भी काम करता था। वो पत्नी ने सोचा कि पति को मांग कर लेने के बदले अच्छा कि मेरा खुद का अकाउंट हो, हम कुछ ले सकते हैं। एक दिन कुछ महंगा चीज़ लेके आई हो। पति ने देखा उसको, पूछा कि इतना महंगा कि चीज़ की क्या ज़रूरत है, ऐसे पूछा। वो पत्नी बोली मेरे अकाउंट से लिया हूँ, ऐसे बोला। किसके अकाउंट से? मेरे अकाउंट से। तो कभी कभी हमारा खुद का अकाउंट होता है तो थोड़ा गर्व भी होता है हमारा, ये मेरा अकाउंट है। लेकिन बाद में वो दोनों पति पत्नी भक्ति में आ गए, दोनों का जॉइंट अकाउंट हो गया उसके बाद घर में। तो पत्नी ने बोला पति को, ठीक है मैं अकेले नहीं रखूँगी, सब आपको दे दूँगी। पति ने बोला क्योंकि तुमने तुम्हारा सब अकाउंट मेरे पास दे दिया, मेरा भी जो भी पैसा है तुम्हारा है। वो बोला। पत्नी ने सोचा बहुत अच्छी बात है, मैं कमाती हूँ 20,000, वो कमाता है 1 लाख। मैं 20,000 का अकाउंट उनको दिया और 1 लाख अकाउंट मुझे दे दिया उन्होंने। हमारा संबंध भगवान के पास भी ऐसा ही है।
अगर हमारे अकाउंट को भगवान के अकाउंट से जोड़ दिया हमने, हमारे अकाउंट में ज़्यादा कुछ नहीं है, जानते ही है ना। इसलिए देखिए भक्तिविनोद ठाकुर कितने बुद्धिमान है, बताते हैं, मानस देहो गेहो जो किचु मोर अर्पिलो तुवा पदे नंद किशोर। बोलते हैं कि मेरे घर, मेरी गाड़ी जो भी हो, मेरे शरीर, हाँ, मेरे बीवी बच्चे जो भी हो मेरे पास, सब कुछ आपको मैं अर्पिलु नंद किशोर, ये नंद किशोर आपके श्री चरणों में मैं अर्पण कर देता हूँ। क्योंकि मैं सब कुछ अर्पित कर दिया, मैं आपका हो गया हूँ, तो हमको देखभाल करना किसका काम है? आपका काम है। तो भगवान बोलते हैं, अरे तुम्हारा सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं तुम्हारे पास, चलो मेरे पास जो भी है तुम्हारा है अभी। भगवान बोलते हैं। इसलिए आप देखेंगे जो भक्त भगवान के हो गए हैं, वो लोगों को भगवान बहुत अच्छा रखते हैं। आप देखेंगे जैसे अगर आप रथ यात्रा में जाते हो, जगन्नाथ बलदेव रथ यात्रा, हम जुहू में एक बार गए थे, 3 रथ होता है उनका, अलग अलग रथ। तो रथ खींच कर अगर आप धूप कड़ी हो जाता है, थोड़ा थकावट होता है, तो भगवान आपको भी रथ में बिठा लेते हैं, बैठ सकते हैं आप, मालूम है ना आपको। रथ के ऊपर भी अनेक लोग हैं, मालूम है आपको, देखा नहीं आपने जगन्नाथपुरी में? रथ के ऊपर भी चढ़कर अनेक लोग उधर बैठकर प्रसाद फेंकते हैं रथ से ऐसे। तो भगवान आपको भी रखते हैं अपने रथ में। इस तरह अगर आप भगवान के हो गए तो भगवान अच्छा खाते हैं राजभोग, और आपको भी देते हैं, खाने के बाद हमको भी मिलता है। तो आप देखेंगे कि भगवान के भक्तों के लिए कुछ कमी नहीं है कुछ। लेकिन जीव भगवान के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं बनाना चाहता, खुद का अकाउंट चाहिए उसको। मेरा अकाउंट क्यों मनमानी करना है? कुछ गलत काम करने के लिए अलग अलग अकाउंट चाहिए उसको। अगर पिताजी बोलते हैं बेटा तुमको जो चाहिए मेरे पास मांग कर लो, बेटा बोलेगा मांग कर कैसे लूँगा, सिगरेट फूकना तो अलग चाहिए ना अकाउंट। ये प्रॉब्लम है उसका। इसलिए जो जीव अलग होकर इस दुनिया में आकर भटकता है, वो ही फंसता है इस दुनिया में, कुछ ना कुछ चीज़ में फंसता हो। अभी ये गजेंद्र जो था, ये पूर्व जन्म में एक दक्षिण भारत में एक पांडे राजा था। वो पांडे राजा, वो रिटायरमेंट का एज आ गया उसका, वानप्रस्थ का वयस आ गया था। सही समय में अपने परिवार को वाइंड अप करके एक कुट्टालम नाम का बहुत सुंदर स्थान है दक्षिण भारत में, उधर एक बहुत बड़े झरना है। आजकल भी देखें, अगस्त में रहते थे ऊपर, उस पहाड़ के ऊपर। तो उधर आकर वो एक गुफा में रहा वो, और भगवान विष्णु का ही भक्त था वो भी। तो ध्यान मुद्रा में बैठकर इसे ध्यान कर रहा था। एक दिन सही चीज़ कर रहा था, उसके कुछ गलती नहीं है उसमें, क्योंकि वानप्रस्थ होने के बाद एक इंसान को, जैसे कुछ समय के पहले मैंने पढ़ा कि 25 उम्र से लेकर 60 उम्र तक एक व्यक्ति के जीवन को उग्र रथ बोलते हैं। क्यों उग्र रथ बोलते हैं? उग्र का मतलब जानते हैं आप लोग, है ना? क्योंकि 25 के बाद जो विवाह होता है, जिम्मेदारी लेना होता है पति पत्नी दोनों को, परिवार के। तो पत्नी को भी समस्या क्या है, हर दिन सुबह उठकर कुकिंग करना है, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल में भेजना है, पति को रेडी करना है, उनको भेजना है, प्रसाद पैकिंग करना है, और घर को साफ सुथरा रखना है, बर्तन घिसना है, करेक्ट है ना, अनेक चीज़ें उनको भी। पति को भी कम नहीं, वो ऑफिस में जाता है, अनेक तरह तरह के लोगों को सामना करना है। कुछ लोग तंग करते हैं, समस्या देते हैं, सबको सामना करना होता है। कभी कंपटीशन होता है, स्पर्धा होता है, कभी नौकरी से निकाल देते हैं उसको, कभी प्रमोशन मिलता है, कभी दूर दूर प्रदेश जाना पड़ता है, कभी रात को 12 बजे 1 बजे तक जागे रहना पड़ता है। अलग अलग लोगों को, कुछ लोगों को ईयर एंडिंग में काम बढ़ जाता है, कुछ लोगों को, कुछ कंप्यूटर कंपनी में कभी कभी 3-4 दिन सोए बिना काम करके उनको सबमिट करना होता है कि नहीं? इस तरह दोनों के लिए अनेक जिम्मेदारियां लेकर उनको चक्कर आता है दोनों को। और बच्चे पैदा हो गए, उनको बड़े करने के लिए बहुत मुश्किल है। छोटा होगा बच्चा तो आग को छूता है, चाकू उठाता है, तकलीफ होता है, माँ हमेशा डरती रहती है। मुंबई में एक बच्चा, ये कुकर का वेट होता उसको मुंह में डाल लिया उसने, तो डॉक्टर के पास भागने लगे, उसको निगल लिया उसने, इधर तक तो इस तरह गया उसको। तो इस तरह बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि बड़ा होने के बाद उसको संभालना आसान है, बड़ा होने के बाद और भी मुश्किल है। हाँ, कुछ भी करता है। माँ बाप डरते हैं कि बच्चा बच्ची मनमानी ना करे। कोई बच्ची बोलेगी माता को,
हम अपना पार्टनर ढूंढ लेंगे, तुम मेरे पीछे मत पड़ो। हाँ, ऐसे बोलती है। हाँ? बेटा भी कभी ड्रग एडिक्ट बन जाता है। हाँ? माँ बाप डरते हैं। तो इस दुनिया, तो इसलिए आप देखेंगे उग्र रथ का मतलब है 25 से लेकर 60 तक उनको जीवन बहुत व्यस्त रखता है उन लोगों को। हाँ? लेकिन 60 के समय बताया गया है कि उग्र रथ शांति बताया गया है। तो षष्ठी अब्द पूर्ति के नाम के एक विवाह मनाते हैं पति पत्नी। आप लोग जानते हैं मैरिज एनिवर्सरी डे होता है ना, वो हर साल मनाते हैं, लेकिन 60वां जब आता है तब खास स्पेशल यज्ञ वगैरह किया जाता है। वो दूसरे विवाह जैसे किया जाता है। दूसरे विवाह दूसरों से नहीं, उनसे ही है, उनके पत्नी से। पति पत्नी उनका ही होता है। तो मुझे थोड़ा मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं पढ़ूं इसके बारे में। क्यों? मेरी बड़ी बहन को 60 उम्र उनके पति को हुआ था, वो लोग मना रहे थे। वो लोगों ने पूछा कि ये दूसरी बार ऐसे, पहले जो विवाह हुआ 25 में हुआ, इस तरह क्यों वापस मनाते हैं इस तरह से? क्योंकि उनको संकोच हुआ कि अभी हम बड़े हो गए हैं, अभी क्या वापस विवाह का उत्सव क्यों बताया गया शास्त्र में। तब में मुझे पढ़ने को मिला कि अभी तक उग्र रथ था, अभी उसको शांत करके अभी नया जीवन उनको चालू करना है। क्या है? 25 से 60 तक भौतिक जिम्मेदारियां, लेकिन 60 के ऊपर आध्यात्मिक जिम्मेदारी लेना है उनको, ऐसे बताया गया। हाँ? उसका मतलब पति पत्नी दोनों इस दुनिया में जिम्मेदारियों को अपने पुत्रों को, पुत्र पुत्रियों को सौंप कर, हाँ, उनको बोल देना बेटा बेटी तुम चलाओ परिवार, हम लोग अभी पूरा भक्ति मार्ग में प्रवेश करेंगे, पूरा लग जाएंगे हम। हाँ? नाम जपना, गीता भागवत पढ़ना, मंदिर में जाना, सेवा देना, पूर्ण रूपेण समर्पित हम भगवान को प्राप्त करने के लिए मार्ग ढूंढ लेना चाहिए बुद्धिमत्ता से। ऐसे जो माता पिता करेंगे उनको बेटा बेटी बहुत आदर देंगे उनको। बेटा बेटी बोलेंगे अरे माता पिता हमको माइक्रो मैनेज नहीं करते हैं, अरे हमेशा भगवान के पीछे पड़े हैं, बहुत पवित्र हो गए हैं। तो वो उनके पाँव पकड़ेंगे, वो बोलेंगे कि माता पिता का आशीर्वाद चाहिए हमको। इस तरह वो सोचेंगे। लेकिन अगर पिताजी अपने बेटे के पीछे पड़ेगा, वो भी जाकर दुकान में जाकर बैठेगा, बेटा बोलेगा कि चारधाम यात्रा करो, हैं क्या दुकान में आकर बैठे हैं आप, हैं बोलेगा ऐसे। वो बोलेगा नहीं नहीं तुम बेटा, तुमको मालूम नहीं, मैं तुमको बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बेटा तक जाएगा वो। हैं इसलिए ये रखा है इस तरह शास्त्र में कि एक व्यक्ति को रिटायर होना चाहिए। तो वो राजा रिटायर हो गया, रिटायर होकर अपने पुत्रों को सौंपा कर वो आ गया जंगल में, आकर बैठकर ध्यान कर रहा था। लेकिन उसका एक बड़ा समस्या था। उसका क्या था? वो आदर सत्कार करने में उसकी कमी थी। मान देना, लोगों को आदर सत्कार करना, स्वागत करना, उसमें थोड़ा कमी थी उसकी, एटिकेट में थोड़ा कमी थी। कुछ लोग तीक्ष्ण बुद्धि होता है उनकी, लेकिन व्यवहार में वो ठीक नहीं है। व्यवहार करने में, आचरण में ठीक नहीं है कुछ लोगों का। कुछ लोग आचरण में बहुत बड़े श्रेष्ठ हैं, लेकिन ज़्यादा मालूमात नहीं है उनको, वो ज़्यादा जानकारी नहीं शास्त्रों का। लेकिन हमें क्या चाहिए? अच्छा आचरण चाहिए, अच्छा शास्त्र का पढ़ाई होना चाहिए, जानकारी चाहिए। क्या चाहिए हमको? दोनों चाहिए हमको। क्योंकि हरिदास ठाकुर के पास दोनों था, वो दोनों जानते थे। तो ये राजा का थोड़ा कमी था वो। देखिए भगवान अति कृपालु परम दयालु हैं, हमको अलग अलग जन्म में मौका देते हैं कि बेटा सुधरो, तुम्हारे पूर्व जन्म में कुछ नहीं था, तुम्हारे पास कुछ गलत गलत भावनाएं थी तुम में, तो उसको अगले जन्म में और एक चांस देता हूँ। वो चांस को लेकर तुम सुधरो। सर अलग अलग योनियों में डालते हैं भगवान हमको, ताकि धीरे धीरे हम सुधर जाए, परिपक्व हो जाए, पूर्णता प्राप्त करें हमारे चरित्र में भी और दिव्य ज्ञान में भी और भगवत प्रेम में भी। उसके बाद भगवान अपने धाम में ले लेंगे हमको। तो इसके कारण एक दिन अगस्त्य मुनि नीचे उतर आए अपने शिष्यों के साथ। उसी एरिया में रहते थे अगस्त्य ऋषि। तो अगस्त्य ऋषि ने देखा कि राजा बैठा है, लेकिन उनको परवाह नहीं किया, अनादर कर दिया करके ये सोचकर अगस्त्य मुनि ने उनको एक श्राप दिया। बोला कि क्योंकि तुम मंद हो इसलिए तुम एक मंद प्राणी बनो, ऐसे बोलकर उनको श्राप दिया। इसके कारण अगले जन्म में वही राजा क्या बना? ये हाथी बना। पहले राजा था, अभी भी जंगल का राजा बनाए, अभी भी।
इस तरह अगर कोई बड़ा नेता है, राजा है, अगर वो मांस खाता है, जानवर का खून पीता, तो जंगल में जाकर एक शेर बनेगा, उधर भी राजा बनेगा वो। ऐसे ही है। इस तरह आप देखेंगे वो पहले राजा था, अभी भी राजा बना वो। तो पहले मंद था, ठीक तरह से स्वागत नहीं किया अगस्त्य मुनि को, तो इसलिए अभी भी आप देखेंगे वो मंद स्वभाव के कारण वो पानी के अंदर गया, मालूम था उसको पानी में मगरमच्छ रहता है, लेकिन थोड़ा असावधानी थी, इनअटेंशन था उनमें। तो इस तरह की गलती होता है कभी कभी। एक माता जी रसोई में कुछ भोग बना रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये बहुत धूप आ रहा है रसोई में, इसलिए उन्होंने कर्टन लगाया, कर्टन लगाया था। लेकिन कर्टन एकदम निकट था, किसके, आग के निकट था। थोड़ा बाहर जाकर आई, देखा पूरा किचन जलकर राख बन गया, पूरा काला 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 हो गया। क्योंकि थोड़ा मार्केट में गई थी, कुछ कोतमीर लाने के लिए गई थी, वहाँ पे जाकर देखा पूरा किचन जल गया था वो कर्टन से ऐसे। तो कभी कभी देखते हैं इस दुनिया में छोटे गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कभी कभी कोई हाथ डालता है बाहर, तो बोलते हैं हाथ मत डालो, कभी दूसरा लारी आता है, इधर आता है, हाथ टूट जाता है ना। तो हमें सावधानी रखना चाहिए हर समय, करते समय। तो इस तरह असावधानी था इसका, ये हाथी का ये समस्या था इसकी। तो लेकिन अभी इसको कुछ मालूम ही नहीं है, अभी विहार करने की मूड में है। तो विहार करते समय, विहार करने के लिए हम जाते हैं, उसमें भी सावधानी चाहिए, क्योंकि अनेक लोग ट्रैकिंग करना चाहते हैं। हाँ, ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग जू में जाते हैं, हाँ, कुछ लोग जंगल में जाते हैं, लेकिन उसमें भी सावधानी चाहिए। IIM इंदौर का क्या हुआ मालूम है ना आपको? IIM इंदौर के 4-5 बच्चे थे, कुछ टीचर प्रोफेसर लोग भी थे उसमें हैं, कुछ लोग गए थे। तो जिस स्थान में डैम को बंद करके रखते हैं ना पानी, उधर नहीं जाना चाहिए। उधर ये दिया है सावधान के लिए, बोर्ड वगैरह लगाया है, लेकिन ये लोगों ने सोचा कि अरे जाने में क्या है, नो प्रॉब्लम, चले गए। तो अचानक पानी को छोड़ा गया। जब पानी जोर से आने लगे, एक दूसरे के हाथ पकड़ कर ये लोगों ने सोचा, लेकिन सब के सब गिर गए नीचे। देखा आपने? देखेंगे आप IIM इंदौर, 5-6 विद्यार्थी ऐसे। तो इस तरह के वो लोग भी विहार के लिए गए थे ऐसे, या उसको क्या बोलते हैं, एक्सकर्शन टर्न्ड इनटू ए नाइटमेयर। वो एक बहुत बड़ा खतरा बन गया ऐसे। तो इस तरह हाथी के लिए भी बहुत खतरा बना। अभी देखिए, अभी जा रहा है अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार, सब लोगों को लेकर विहार के लिए जा रहा है ऐसे। और जाते समय बताया गया है कि बीच में देखिए अनेक पेड़ों को तोड़ा उसने, पौधों को तोड़ा, और परवाह नहीं किया उनके बारे में, ऐसे बताया गया है। तो भागवत में बताया गया कि ये जो हाथी की उदाहरण दिया गया है इधर, लेकिन हाथी को भी तुलना किया जा रहा है एक धनी व्यक्ति के साथ। अगर कोई व्यक्ति बहुत धनी हो, उसके पास धन दौलत बहुत हो, तो उसके अनेक नाता रिश्ता होते हैं। हमेशा उनके साथ स्टार होटल्स में जाता है, अच्छा खाता है, कभी यूरोपियन टूर में जाता है, कभी कभी खुद का भी प्लेन होता है उसका। तो एक बार हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज आए थे, तो उन्होंने बुलाया मुझे भी, आप तुम भी आओ, मैं लेके जाऊंगा एक बहुत बड़ा डोनर है। वो डोनर नहीं था, डोनर बनने की मौका था उनको। ऐसे एक बड़ा व्यक्ति था, उनके पास लेके जाने के लिए, नाम नहीं बोलूँगा, ऐसे अनेक लोग हैं, ऐसे एक व्यक्ति के पास लेके गए हो। तो उनके घर में जब गए थे, वो था, उसका उम्र लगभग 76 था उसका उम्र, फिर भी उसके ऐसा ऐसा चल रहा हो, राजा जैसे हो, ऐसे हैं। तो महाराज ने इंट्रोड्यूस किया मुझे, युवकों का प्रचार करता है काशनापुर। मैंने हरे कृष्ण बोला उनको। तो वो बोले अच्छा ऐसा क्या, मेरा खुद का कॉलेज है, एक स्थान में उनका कॉलेज है। वो बोले कि उधर आओगे? बोला क्यों नहीं, बोला जरूर आएंगे। तो वो बोले चलो अभी हम चलते हैं, बोला। मैंने बोला नहीं, उसके लिए ट्रेन बुकिंग वगैरह करना होगा। अरे ट्रेन की बुकिंग क्या है, मेरा चार्टर्ड प्लेन है, मैं लेके जाऊंगा तुमको, ऐसे बोले वो। तो
वो बड़ा करोड़पति है, उसके बाद हजारों करोड़ है उसके पास है, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ करोड़, ऐसा आदमी था वो। लेकिन 4 साल के बाद हम गए उनके पास, महाराज वापस गए, मैं भी साथ में गया। उन पर बीबी गुजर गई थी उनका, तो इनका भी 80 हो गया था। एकदम उनका शरीर जैसे बलून में हवा निकलने के बाद कैसे हैं ऐसा हो गया था, बहुत ठंडा पड़ गया था तभी हैं। तो हमने देखा कि 4 साल में कितना बड़ा परिवर्तन आया इस दुनिया में हैं। तो जब इंसान के पास बहुत पैसा होता है, गर्व होता है, जब कुछ व्याधि आ जाता है शरीर में, व्याधि पकड़ लेता है इंसान को, तब डर आ जाता है, डर पैदा होता है, अरे व्याधि मुझे निगल लेगा मुझे हैं। वो कलकत्ता में एक व्यक्ति था, पापा जी बोल रहे हैं कि डॉक्टर को उसने बोला कि डॉक्टर पहले मैं चलता था फिरता था, बाद में बार बार मुझे बैठना पड़ा, अभी मैं लेटा हुआ हूँ बिस्तर में हैं, अभी क्या होने वाला है मेरा बता दो हैं, क्या व्याधि है। मेरे बेटे नहीं बोल रहे हैं, 4 बेटे हैं मुझे, सबको बिजनेस में अभी भी लगाए हूँ, वो तरुण है अभी। डॉक्टर ने बोला क्या बोलूँ मैं, आपका कैंसर है और आपके बेटे ने आपको बोला नहीं, मैं उनको बोल दिया लेकिन उन्होंने आपको बोला नहीं। वो बोले कि आपको सिर्फ 4 घंटा बाकी है, तो आप जो भी करना हो आप तैयार कर लीजिए मन में। बोला ऐसा क्या, पहले ये लोगों ने बोला नहीं? ठीक है चिंता मत करो, मेरे पास हजारों करोड़ रुपया है, तुमको 100 करोड़ तुम्हारे नाम में लिख दूंगा, तो मुझे क्या करो 4 साल दे दो मुझे, 4 साल में मैं सब बेटों को तैयारी कर दूंगा, अच्छा तरह बिजनेस सेटअप कर दूंगा, उनको सब समझा दूंगा, तो उसके बाद वो लोग चलाएंगे, मैं आंख बंद कर सकता हूँ उसके बाद शांति से ऐसे बोला। डॉक्टर बोले तो 100 करोड़ तो अच्छी बात है, मुझे भी चाहिए लेकिन मैं 4 घंटे से 1 मिनट ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। आयुष्य क्षण एकोपि नलभ्य स्वर्ण कोटि भी है, एक क्षण भी हम दे नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। अगर भगवान की ईश्वर की इच्छा हो सकता है, लेकिन हम कैसे हम दे पाएंगे आपको, आपकी उसके आगे हम बढ़ा नहीं पाएंगे, ऐसे वो बोल रहा था। तो तब इस व्यक्ति को पता चला कि अरे पैसे से इस दुनिया में मैंने कुछ भी चीज़ खरीदना हो खरीद सकता था मैं पहले, बंगला खरीदना है बंगला खरीद सकता, बंगला तोड़ना है बंगला तोड़ कर नया बनाओ वो भी कर सकता हूँ, बड़ा गाड़ी लेना है गाड़ी ले सकते हैं, चार्टर्ड प्लेन चाहे तो चार्टर्ड प्लेन ले सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को भी खरीद सकते हैं पैसा देकर इस दुनिया में। जैसे मुंबई में एक व्यक्ति बहुत धनी व्यक्ति है, वो एक कुछ हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी देख रहा था, उसमें एक एक्ट्रेस को देखकर बहुत आकर्षण आ गया उसमें, तुरंत उसने उसका फ़ोन नंबर लेकर फ़ोन किया, बोला उस एक्ट्रेस को तुम आ जाओ मैं तुमसे विवाह कर लूँगा। वो भी उसके लिए प्लेन भेजा, उसको प्लेन गया, उसको उठा कर लेके आया उसको। वो तरुणी थी, वो 22-23 की थी वो, ये था 60 के निकट। इसका ऑलरेडी एक बीबी है इसका, अपने बीबी को बोल दिया देखो तुम भी रह सकती हो चाहिए तो, लेकिन इसको भी विवाह करने वाला हूँ मैं। साथ में बीबी रोती हुई अपने मायका में चली गई वो, इसको लाया। तो देखा सोचा कि पैसे देकर मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, खरीद लिया उसको ऐसे। वो भी उसको मालूम था कि ये 60 का है, फिर भी विवाह किया उसने, सोचा कि जल्दी मर जाएगा पूरा पैसा मुझे आ जाएगा, इस तरह सोचकर वो एक्ट्रेस भी आ गई ऐसे। लेकिन आने के बाद क्या है, इसको पता चला कि एक ही हफ्ते में पता चल गया कि उस नारी के पास चरित्र नहीं है, वो दर्जनों लड़कियों के साथ घूमती है वो। ची सोचा मेरी पत्नी ऐसे नहीं, मेरी पत्नी गुणवती है। अपनी पत्नी को बुलाया, बोला कि तुम बहुत अच्छी थी, मुझे तुम्हारे जैसे चरित्र चाहिए और ये जैसे खूबसूरती चाहिए, दोनों चाहिए मुझे, इसमें खूबसूरती और तुम्हारे पास चरित्र है। बोला वो मायका गई थी ना पत्नी, बोला कि मैं आऊँगी जब इसको तुम निकाल दो मैं आ जाऊँगी। वो बोला अभी नहीं निकाल सकता, इसको विवाह किया मैंने, तो ठीक है बाद में देखेंगे बोला वो। तो अभी क्या हुआ, ये इसके चरित्रहीन व्यवहार को देखकर ये बहुत दुखित हो गया है, नाराज हो गया, उसके साथ वाद विवाद किया। बोला कि देखो तुमको विवाह किया मैंने, इतना बड़ा करोड़, तुमको जो भी चाहे मैं दूंगा, लेकिन पर पुरुषों के साथ तुम घूमना नहीं कभी। वो सोची कि ये क्या मेरा फ्रीडम को छीन रहा है ये बुढ़ा, ऐसा उन्होंने सोचा। तो तब इसने सोचा अभी स्त्री को मैं डाइवर्स कर दूंगा, अभी अच्छा नहीं है इसका चरित्र, डाइवर्स कर दूंगा। तो उसको पता चल गया कि डाइवर्स करने वाला है, अगर डाइवर्स करेगा तो मुझे ज़्यादा कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, थोड़ा ही मिलेगा मुझे।
इसलिए वो नारी सोच रही थी कि इसको उड़ा दूंगी मैं। हाँ? तो उसको पता चल गया कि उसको उड़ाने की सोच कर रही है वो। हाँ? तो उसने तुरंत 2 बाउंसर्स को अपने अपने सुरक्षा के लिए रखा। बाउंसर जानते हैं आप? बड़े बाउंसर होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं। तो सुबह उठता था, बाउंसरों के साथ जाता था, बाउंसर के साथ आता था घर में भी। कभी भी रात को सोते समय भी बाहर 2 बाउंसर रखा उसने। है कोई मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये सोचा कि ये कितने दिन चलेगा परिवार ऐसे बाउंसर को लेकर। हाँ, तो सोचा कि मैं उसको उड़ा दूंगा करके इसने सोचा। तो वो जो थी वो भी 2 रखने लगी वो भी। तो आप देखेंगे इस तरह के परिवार में अशांति हो गया, वो शांति चला गया, लेश मात्र भी शांति नहीं रहा। देखिए पैसे से शांति नहीं, आप देखते हैं। हाँ? इसके पास पैसे की कमी था क्या, लेकिन अशांति नहीं। आप लोग देखो कितने शांति से बैठे हो। इसलिए पैसे की लालसा मत करो रखो। क्योंकि पैसा आने से ऐसा नहीं कि पैसा के साथ शांति आता है। पैसा ज़्यादा होने से भी अशांति। इसके पास 2 बाउंसर, उसके पास 2 बाउंसर। अभी भी चल रहा है उनका, ऐसे सुना मैंने। ऐसे पता नहीं कितने समय से जीना उनको। हाँ, डर के मारे मार देगी वो सोचते कि वे मारेगा। ऐसे रहना उनको। तो इस तरह का आप देखेंगे बड़े बड़े परिवार में भी, खानदान में भी, भाई भाई के बीच में भी झगड़ा होता है पैसे के कारण। हाँ? नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन आप जानते भी होंगे बड़े खानदान में भी इतना पैसा है, पैसा है उनके पास। हाँ? फिर भी भाई भाई के बीच में मनमुटाव है, झगड़ा है, क्योंकि प्रॉपर्टी डिवीजन में। उसके विरुद्ध आप देखेंगे कोई झोपड़ी में रहते हैं, एकदम मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, बहुत शांति से रहते हैं। मैं भागवत वितरण के लिए घर घर में जाता हूँ ना, मैं स्लम्स में भी जाता हूँ। झोपड़ी पट्टी में भी अगर कोई भागवत लेते हैं तो मैं जाता हूँ। मैं ऐसे झोपड़ी पट्टी एरिया में एक परिवार था जो हमारे मंदिर में आते थे। वो लोगों ने बुलाया, बोले कि प्रभु जी उधर भी आ सकते हैं क्या आप बुरा तो नहीं लगेगा ना आपको? मैंने बोला नहीं ज़रूर आऊँगा। तो गया, उनका इतना छोटा घर है, 10 बाई 10, उतना छोटा घर है उनका। है उसमें भी आधा घर भर गया, बड़ा आल्टर बनाया उन्होंने। राधा कृष्ण का, राधा वृंदावन का आल्टर बनाया उन्होंने। तो मैंने सोचा कि किधर हम प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम बाहर ही है बोला उन्होंने, अंदर नहीं, अंदर रख नहीं पाएंगे। तो उन्हें 40 लोगों को लेके आया वो लोगों ने। जब उनके घर गया, देखा मैंने तिलक पहने हैं, पति पत्नी बच्चे, 2 बच्चे हैं, सब तिलक पहने हैं, सब मुस्करा रहे हैं। बोले कि प्रभु जी जब से हम इस्कॉन से जुड़े, हर दिन हम भोग बनाकर भगवान को भोग चढ़ा कर ही हम प्रसाद ही पाते हैं। हम के घर में सब लोग, हम लोग 16 माला करते हैं। और उन्हें बोला कि कुछ तो एलईडी का बिजनेस है उनका, महीने में 2-3 एलईडी करता है वो, महीने की खान पान मिल जाता है उसको, बस ज़्यादा नहीं कमाता है वो बोला कि भागवत खरीदने के लिए मैं 5 साल से मैं पैसा इकट्ठा किया है मैंने, अभी मैं खरीद पा रहा हूँ भागवत। धीरे धीरे इकट्ठित करके अभी मैं खरीदा भागवत। और मुझे मालूम था कि आप भागवत जो लेते हैं उनके घर में आते हैं आप। हैं इसलिए मैं पहले से प्लानिंग किया था कि आपके द्वारा कर देंगे। ऐसे बोल के बुलाया था, मैं गया था, कथा भी किया। लेकिन क्यों उदाहरण दिया मैं आपको, ये लोग रहते हैं झोपड़पट्टी एरिया में, लेकिन उनकी लेश मात्र भी अशांति नहीं घर में, सब खुश हैं वो लोग हैं, क्योंकि भगवान से जुड़े हैं, भक्ति है, भक्ति भावना में बहुत अच्छी तरह रहते हैं। लेकिन ये गजेंद्र जो था, ये अपनी भक्ति भावना को भूल गया था। वो ये भूल कर अपने आप को सक्षम माना, बहुत अपने आप को शक्तिशाली माना। ऐसे ही धनी खानदान में जाने में लोग, उनको भी गर्व होता। कभी कभी साधु महात्माओं को वो मिलते भी हैं, वो लोग उनको भी उपदेश देते हैं। देखिए ठीक है, हम मानते हैं कि धन है तुम्हारे पास, लेकिन शास्त्र की जो गूढ़ मर्म को जानना हो तो साधु संतों से सुनना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। लेकिन उनका आदत हो जाता है, क्योंकि उनको अनेक चापलूसी करने वाले लोग उनके निकट अनेक लोग होने के कारण वो लोग किसी को भी देखते हैं उनको वो उपदेश देते हैं। वो प्रभुपाद के पास भी अनेक लोग आए ऐसे धनी लोग, वो लोग प्रभुपाद को उपदेश देते। प्रभुपाद जी बोलते थे कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो, जुड़ जाओ मेरे साथ। तुम भी आ जाओ, मंदिर में आ जाओ। डर जाते हैं वो लोग, भाग जाते थे। एक बड़ा बिजनेसमैन आया था प्रभुपाद के पास, मौत करके आया था। और प्रभुपाद, स्वामी जी आप 40 रुपये लेकर गए, 40 करोड़ लेकर आए वापस। आप जैसे बिजनेस अक्यूमेंट किसी के पास नहीं है। तो मैं भी थोड़ा जानना चाहता हूँ, कुछ टिप्स सीखना चाहता हूँ आपसे। प्रभुपाद बोले कि अगर तुमको अच्छा लग रहा है कि मेरे बिजनेस, तुम भी जुड़ जाओ इसमें।
पूरा जुड़ना नहीं हमको, सिर्फ आइडिया चाहिए हमको। तो कभी कभी आप देखते हैं इस तरह ये लोग, एक चीज़ तो धनी लोग हैं और दूसरे लोग हैं जो क्या बोलते हैं, पावर, इन्फ्लुएंस, जो प्रभाव डालने की क्षमता है। कुछ लोग पॉलिटिक्स में जुड़कर अनेक लोग उनके अधीनता में रहते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं। कुछ लोग बड़े सिनेमा एक्ट्रेस होते हैं, कुछ लोग धनी लोग होते हैं, कुछ लोग बड़े वक्ता होते हैं, वाक चातुर्य है उनके पास है। कुछ लोग कुछ कला में, कोई चेस चैंपियन है, कोई क्रिकेट चैंपियन है। इस तरह आप देखेंगे जो भी हो, जो मशहूर हो, जगत प्रसिद्ध हो, उसके पास ऐशाराम हो, सब लोग उसको सलाम मारते हो, तो वो व्यक्ति को लगता है कि ये जो अभी मेरा माहौल चल रहा है ये हमेशा के लिए चलने वाला है। इस तरह वो लोग सोचते हैं। ये सत्य बात है क्या? नहीं। जैसे सिनेमा एक्ट्रेस, मैंने सुना कि अमेरिका में एक एक्ट्रेस थी, उसका एक सफ़ेद बाल आया तो तुरंत उसी दिन आत्महत्या कर ली उसने। तो उसने सोचा कि अरे मुझे भी सफ़ेद बाल आएगा क्या, ऐसा सोचा उन्होंने। क्या ऐसा ही रहेगा हमेशा के लिए, काला बाल रहेगा काला ही। तो ये बाल तो पक जाता है और शरीर में झुर्रियाँ आ जाते हैं, दांत एक एक करके निकल जाता है, 1 आउट 2 आउट ऑल आउट निकल जाता है ना। और और शरीर में कमजोरी आ जाता है और एक लाठी की ज़रूरत पड़ता है कि नहीं। तो हम लोग सोचना नहीं चाहिए कि हमेशा के लिए ऐसे परिस्थिति रहेगा। तो ये देखिए गजेंद्र जा रहा है अभी, अनेक नाता रिश्ता सबको लेकर घूम रहा है। और जब वो चलता था भूमि में कंपन होता था, ऐसे बताया गया। सब प्राणी डरते थे, भागते थे दूर उसको देखकर। तो ये भी विहार करने के लिए प्रवेश कर रहा है वो झील में। तो अपने सूंड से पानी को उठाकर खुद भी नहाया, पानी पिया और अपने सब फ्रेंड्स और नाता रिश्ता परिवार वाले सबके ऊपर भी पानी फेंका वो। और इस तरह वो लोग विहार कर रहे थे। अचानक एक मगरमच्छ पकड़ा उसको, पानी में जो था। तब करेक्ट, ये लास्ट श्लोक है आज का। वो पकड़ा गया। गजेंद्र को पहले डर नहीं पैदा हुआ गजेंद्र को। उसने सोचा कि ठीक है ये तो प्राणी, क्या छोटा प्राणी है, इसको फेंक दूंगा। जो फेंकने के लिए प्रयत्न किया उसने, लेकिन वो मगरमच्छ ने बहुत जोर से पकड़ा था उसको। इधर दिखाया गया सूंड को पकड़ा है, लेकिन वो पाँव को पकड़ा उसने। वो आएगा, बाद में आएगा पिक्चर। इधर देखा ना आपने, ऐसे उसके पाँव को पकड़ लिया था। तो शुरुआत में गजेंद्र ने अपने क्षमता के अनुसार उसको जीतने के लिए प्रयत्न की, लेकिन समझ में आ गया उसको कि बहुत जोर से पकड़ा है और मैं बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ मैं। धीरे धीरे उसको पता चल गया कि किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो मुड़कर देखा कि उसके सब हाथी के समाज के लोग जो खड़े थे, परिवार के लोग थे, बाहर फ्रेंड्स भी थे, कोई भी अंदर आने के लिए तैयार नहीं था। सब बाहर किनारे में चले गए। उनको भी डर पैदा हो गया कि हमको भी दूसरा मगरमच्छ पकड़ लेगा हमको। वो डर पैदा हो गया उनको। कोई भी निकट नहीं आ रहे थे। कुछ हथनियाँ थी जो उनकी पूंछ पकड़कर खींचने के लिए प्रयत्न किया उन्होंने। अरे पूंछ पकड़कर कैसे खींचोगे? हाँ, सामने आकर कोई मगरमच्छ को मारता था और दूसरा हाथी, देखिए अगर 3-4 हाथी आकर मगरमच्छ को के ऊपर प्रहार करते थे तो ये बच सकता था, लेकिन कोई अंदर आने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये दुनिया में ये सोचने की बात है कि हम लोग कभी कभी, खास करके जब ब्याह होता है, विवाह होता है, उसमें सब नाता रिश्ता आ जाते हैं। हमको लगता है कि अरे इतने मेरे फ्रेंड्स हैं,
दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, मेरे मामा हैं, काका हैं, जितने लोग हैं सबको जाकर मिलते हैं। सबको हमको लगता है कि ये सब लोग हमको सुरक्षा प्रदान करेंगे, करेक्ट है ना? हर एक को लगता है कि हमारा बड़ा परिवार है, हमारे इतने सबको अच्छा कोई ना कोई आ जाएगा, हमको कुछ तकलीफ होगा तो। इस तरह का इसको स्वर्गीय रस बोलते हैं इसको। स्वर्गीय मतलब एक तरह का इमोशनल सपोर्ट मिलता है हमको उन लोगों को देखकर। लेकिन जब एक्चुअली समस्या आता है सब लोग भाग जाते हैं, कोई निकट नहीं आ पाता है, क्योंकि हर एक का अपना 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 परिवार है, अपना अपना काम धंधा है, अपना अपना समस्या है। और खास करके जब हमको कुछ तकलीफ होता है, दूसरे लोग उस तकलीफ को ले नहीं पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको बुखार हो गया तो बाकी लोग बोलेंगे टेक केयर बोलेंगे, थोड़ा दवाई खाओ, सो जाओ, ठीक हो जाएगा। अगर किसी का कोरोना हो गया, वो श्वास नहीं ले पा रहा है, तो बाकी लोग क्या कर पाएंगे? थोड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर ला पाएंगे थोड़ा। आपने देखा कभी कैंसर जिनको होता है वो लोग कीमियोथेरेपी करते हैं, पूरा बाल गिर जाता है, पूरा चेहरा बदल जाता है। तो बाकी लोग थोड़ा पैसा दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी पैसा खर्चा करने के बाद भी व्याधि ठीक नहीं होता। कभी कभी व्याधि और बढ़ता जाता है, इरिवर्सिबली बढ़ता जाता है। तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं, ये फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, बोलता है, करेक्ट है ना? कभी कभी डॉक्टर लोग भी बोल देते हैं कि अभी 2 साल से ज़्यादा नहीं टिकेगा इसका शरीर ऐसे। तब क्या कर पाएंगे? हैं कोई इस दुनिया में किसी को बचा नहीं सकते हैं ऐसे परिस्थिति में। इसलिए बताया गया है कि नाता रिश्ता लोग जब अगर किसी का मृत्यु होता है तो घर में आते हैं वो लोग, ऐसे खड़े रहेंगे, औपचारिक रूप से देखेंगे, कुछ समय के लिए निकल जाएंगे वो लोग, बोलेंगे अटेंडेंस देकर आ गए हम। करेक्ट है ना? अगर कोई मर गया तो नाते रिश्ते को मिलने के लिए आते हैं, कुछ समय खड़े रहेंगे, निकल जाएंगे, वो क्या करेंगे? और पत्नी जो है वो गली तक आएगी बाहर, वो रोएगी, वो चली जाएगी, वो भी अंदर घर के अंदर चली जाएगी वो। लेकिन बेटा आएगा कब तक? श्मशान तक आएगा वो। तो श्मशान के बाद आगे कौन आएगा? सिर्फ परमात्मा आते हैं हमारे साथ। तो ये सोचने की बात है, क्योंकि परमात्मा जीवात्मा को कभी नहीं छोड़ते वो। अगर हम एक कीड़े के योनि में भी जाते हैं उधर भी आते हैं वो। अगर हम सुअर के शरीर में जाते हैं उधर भी जाते हैं, वो कभी नहीं बोलते अरे दुर्गंध, इतने गंदे शरीर में तुम बैठे हो और गटर के अंदर डूब कर बैठे हो, मैं नहीं आऊँगा, ऐसे नहीं बोलते हो। कहीं कहीं भी हम जाते हैं वो साथ में परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है, साथ साथ में आते हैं वो ऐसे। तो अभी गजेंद्र को भी ये बात समझ में आ गया कि अभी मैं खुद भी अपने आप को बचा नहीं पा रहा हूँ, कोई मुझे बचा नहीं पा रहे हैं, कोई मुझे, और मेरे लिए कोई नहीं है। तो आसमान की ओर मुड़कर देखा, अनेक देवी देवता थे। तो देवी देवता घूम रहे थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि गजेंद्र हमारे सहारा मांगेगा, सपोर्ट मांगेगा तो हम आएंगे। लेकिन गजेंद्र ने सोचा कि ये क्या देवी देवता हैं, इनका भी जन्म हुआ है, इनका भी मरण होगा, और ये देवी देवता जो हैं ये भी ब्रह्मांड के अंदर कुछ समय के लिए उनको पोस्ट दिया गया है, ये हमेशा के लिए ये शाश्वत पुरुष नहीं है ये लोग हैं। इसलिए उनको नकार दिया उन्होंने, सीधा भगवान को पुकारा है, हे परम सत्य, हे गुणातीत भगवान है, हे सर्वगुण संपन्ना, हे ईश्वर, हे परम ईश्वर, जो ईश्वरों के सब ईश्वरों के भी ईश्वर, इस तरह उन्होंने बुलाया। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, तो हे सब जीवों के शुभ चिंतक हैं, इस तरह उन्होंने भगवान को अलग अलग नामों से पुकारा उन्होंने। तो भगवान को बोला कि आपका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, लेकिन मालूम है कि आप हो जरूर। तम ईश्वराणाम परमं महेश्वरम, तम दैवतानां परमं च दैवतम, पतिम पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवनेश्वमीढ्यम। ये श्रुति मंत्रों में बताया गया है। इसे भगवान ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, तब देवताओं के भी देवता हैं, परम देवता हो। और सब देवता उनके ही आश्रय में जाते हैं जब तकलीफ होता है उनको। सब तकलीफ होता है, सब देवता ब्रह्मा के पास जाते हैं, और ब्रह्मा उनको लेकर दुग्ध सागर में जाते हैं। उधर जाकर भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं कि एक अवतार भेजिए ताकि हम असुर से बच पाएंगे, है कि नहीं। तो इन्होंने सोचा कि देवताओं के पास क्यों जाने का है, वो भी लोग उनके पास ही जा रहे हैं, परम पुरुष के पास। तो मैं परम पुरुष, शाश्वत पुरुष को मैं पुकार लूँ, ऐसे उनको पुकारा इन्होंने। तो हालांकि उनका नाम याद नहीं आया, फिर भी परम पुरुष करके उनको पुकारा। और उस समय वो ट्रॉमेटिक बोलते हैं, ट्रॉमेटिक सिचुएशन का मतलब क्या है, ऐसे एक घटना दुर्घटना होता है
बहुत तकलीफ होता है कि व्यक्ति को कभी पूर्व जन्म के याद आ जाता है। तो गजेंद्र को याद आ गया, इंद्रद्युम्न राजा के जीवन के बारे में याद आ गया उसको। मैं राजा था पहले और अगस्त्य मुनि ने श्राप दी थी मुझे हाथी बनने के लिए, और उस समय जिन्होंने जो भी श्लोक याद किया था वो श्लोक अभी याद आ गए उसको। तो आप लोग भी देखेंगे कभी कभी कुछ श्लोकों को पढ़ते समय आपको अनुभव होगा कि ये श्लोक कहीं तो सुना है हमने, लेकिन आपने इस जन्म में सुना ही नहीं है। कुछ कुछ श्लोक आपने पूर्व जन्म में सुना है, उसका याद अगले जन्म में याद आ जाता है ऐसे। इसलिए आप तुरंत उसको याद कर लेंगे, 2 बार पढ़ा तो तुरंत घुस जाएगा आपके दिमाग में वो श्लोक तुरंत ऐसे हैं। तो इस तरह गजेंद्र प्रभुपाद जी बोलते हैं उस तात्पर्य में हम लोग भी नरसिंह आरती, ब्रह्म संहिता इत्यादि करते जाएंगे हम लोग अगले जन्म में, नहीं तो मृत्यु के समय ये सब स्मरण में आएगा हमको। तो श्लोक इसलिए हम लोगों ने गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना शुरुआत में की हमने। इस तरह हम करते जाएंगे हमारे चित्त में वो बैठ जाता हो। उसके बाद बार बार गूंजता रहेगा, हे कांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्रमग्ना। तो इस तरह ये श्लोकों को बार बार हम उच्चारण करके उसके बाद गूंजता रहेगा हमारे मन में। ऐसे ही रहा गजेंद्र को भी, पूर्व जन्म में अच्छी तरह भक्ति भी की थी उन्होंने। तो आप सोचेंगे प्रभु जी भक्ति करके उनको इस तरह का नुकसान क्यों हुआ, उनको एक हाथी बनना पड़ा। लेकिन देखिए अगर भक्ति करके भक्ति में पूर्णता प्राप्त नहीं की, उनको अनेक जन्म काटना पड़ेगा उनको। धीरे धीरे 20% किया, 40% किया, 60% किया, ऐसा करके। लेकिन गजेंद्र का शरीर मिलने के कारण उन तीव्रता से भगवान को पुकारने की मौका मिली उनको। क्योंकि हम लोग भी भगवान को तब स्मरण करते हैं जब कुछ तकलीफ होता है, करेक्ट है ना। तकलीफ नहीं होता तो इंसान ठंडा पड़ जाता है, भूल जाता है भगवान को ऐसे। इसलिए तीव्रता से उन्होंने भगवान को पुकारा, रोते हुए भगवान को पुकारा उन्होंने। इसलिए भगवान भी जल्दी आकर उनको उद्धार करेंगे, आप देखेंगे ऐसे। तो ये गजेंद्र की स्थिति के बारे में हम बता रहे थे कि ये एक धनी व्यक्ति, नहीं तो मशहूर व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति, जो सक्सेसफुल यशस्वी व्यक्ति जो होता है वो बुलक्कड़ होकर इस दुनिया में भटकता है। हम इस तरह शास्त्र बताते हैं, हम इस तरह बुलक्कड़ ना हो जाए ऐसे हैं। जितना भी हमें क्षमताएं हो, शक्ति हो, यश हो, हम हमेशा स्मरण रखें कि ये दुनिया क्षणभंगुर है, कभी भी कुछ भी खतरा आ सकता है। अगर कुछ भी खतरा नहीं आया आपके जीवन में, मृत्यु नाम की चीज़ तो आएगा ही एक दिन, है ना। बुढ़ापा भी आएगा ही ज़रूर। कोई है क्या इस दुनिया में जो 200 साल, 300 साल, 400 साल जीने वाला कोई है क्या ऐसे? कोई है? तो 100 को भी छूते नहीं कुछ लोग हैं। एक आध बार कभी कभी सुनते हैं ये व्यक्ति को 100 साल जिया उसने, उसको गिनेस बुक में आ जाएगा उसका, है 100 साल जिया इन्होंने, उनको फोटो निकालेंगे उसका, है नहीं तो न्यूज़पेपर में आएगा। उसके बाद कितना समय टिकेगा पता नहीं, 101, 102 में गुजर जाएगा वो भी। कोई हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है, आत्मा अजर है, अमर है, और आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध है। और ये बात सब भूल गया था गजेंद्र। ये समस्या है। जब हम लोग ऐशाराम के बीच में जीते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं, उतना हम भगवान को भूल जाते हैं। भागवत में एक श्लोक है, सुंदर श्लोक है, उसको बोलकर हम प्रवचन को विराम देंगे। ये श्लोक में बताया गया कि वन शुड रब द माइंड एंड सेंसेस विद द नेम एंड फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। Rub the mind and senses with the name and form of the Lord, it says. By doing this, the name and form of the Lord will enter into your chitta. On the other hand, those people who possess palakankshi, the fruitive mentality, they will be very dull-headed, and they won't be able to chant the holy name properly. They won't be able to remember the Lord in the mind very easily. इसको हिंदी में भी बोलेंगे हैं। देखिए भागवत में एक श्लोक है, उधर बताया गया कि एक व्यक्ति को अपने मंत्र की उच्चारण जिह्वा से जो होता है, उस उच्चारण और मन दोनों से भगवान के सुंदर स्वरूप और उनके नाम का ध्वनि, इन दोनों को स्पर्श करना चाहिए। अपने जिह्वा से उच्चारण करके उसको श्रवण करना,
और श्रवण के साथ साथ भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करना। जो करता है उनके हृदय में भगवान बस जाते हैं, ऐसे भागवत में बताया गया। और धीरे धीरे वो भगवान जग जाते हैं उनके हृदय में। जिस तरह काष्ठ के अंदर आग रहता है ना, आग को उठने से काष्ठ मिट जाता है, इस तरह हमारे हृदय में जो भगवान जग जाते हैं तब स्थूल सूक्ष्म शरीर छूट जाता है और आत्मा परम कल्याणकारी कार्य करके नाम जप कर वो भगवत नाम प्राप्त करता है, ऐसे बताया गया। इसके विरुद्ध बताया गया जो फलाकांक्षी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, तो भौतिक कार्यकलाप में डूबे रहते हैं, हमेशा अपने आप को बड़े मानते हैं और धन दौलत में नहीं तो अलग अलग चीज़ों में दुनिया में भटक जाते हैं। वो लोगों को बुद्धि जो है बहुत स्थूल बुद्धि होगा उनका, है? तो वो लोग भगवान के स्वरूप को देख नहीं पाएंगे, भगवान के नामों को सही ढंग से उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए दे डू द चैंटिंग रिचुअलिस्टिकली एंड दे डू डिवोशन सर्विस फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो लोग क्या करते हैं, नाम के लिए लेते हैं, बोलते हैं नाम के वास्ते बोलते हैं ना, वैसे हैं, ऐसे लेते हैं, नाम गंभीरता से नहीं लेते हैं वो लोग। और साथ साथ भक्तिमय सेवा भी करते हैं कुछ फलाकांक्षी होकर। इसलिए गजेंद्र स्थूल बुद्धि वाला हो गया था अभी तक। जब तक कतरा नहीं आई उसके जीवन में, उसका बुद्धि स्थूल बुद्धि हो गई थी। सदा विहार करना, खाना पीना, सोना मैथुन करना, इसमें बिताता था समय वो। अपने आप को बड़ा मानता था, अपने आप को सक्षम मानता था। इस तरह की दुनिया में अनेक मनुष्य लोग भी इस गजेंद्र के समान ही जीवन जी रहे हैं। इसलिए एक चेतावनी दिया जा रहा है हम लोगों को। सूर्य के उदय और अस्तमन से एक दिन कट जाता है हमारे जीवन से, और मृत्यु निकट आने के पहले जग जाओ, प्रभु की चेतना में जीवन जियो और तैयारी कर लो, सही ढंग से तैयारी करो, कभी भी मृत्यु आ सकता है। ये संदेश है भागवत का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की और भक्तवृंद की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आइए हम प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इतना सुंदर तरीके से उन्होंने गजेंद्र जी की पूरी लीलाएं, पहले स्टार्टिंग में श्रोतम पूरा गाया और उसके बाद बताया कि किस प्रकार से हम देख सकते हैं स्वर्ग का ऐश्वर्य, है ना, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। और फिर कैसे गजेंद्र आ रहा है और वो गजेंद्र को किस दो चीजें हर व्यक्ति को चाहिए, है ना, क्या चाहिए? हाँ, तो वो प्राप्त करने की कोशिश के लिए बहुत सारी जगह जाते हैं लेकिन कहीं मिलता नहीं है, सिर्फ एक ही जगह मिलेगा। कहाँ पे? भगवान के धाम में। और फिर उसके बाद प्रभु जी ने अभी अंत में आते आते कैसे जब वो डिफिकल्ट सिचुएशन आया तो गजेंद्र ने उसको याद कर लिया, और क्या याद किया और कैसे आगे बढ़ेगा वो हम कल सुनेंगे। तो आइए प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं, जोर से 3 बार हरि बोल बोल के हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और एक और चीज, आज बैंक अकाउंट खुल गया है जॉइंट वाला, है ना, अभी उसमें पैसे भी डालने थोड़े से, तो वो जॉइंटली सब लोग उसमें पैसे डालने के लिए कब आएंगे? कल वापस श्रीमद् भागवतम क्लास के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु जी का संग हमको कल भी है और परसों भी है। तो आप लोग अपने बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए कल वापस आइए सुबह श्रीमद् भागवतम कक्षा में, बाय हिज ग्रेस। राधे श्याम प्रभु जी, जय श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की।